Detective, Class 7th English. Nisat and his 10 years old sister Maya has always been about their neighbor Mr. Nath. One day, their marble went inside his house and Nisat got a chance to catch a glimpse of Mr. Nath. To Nishad, he appeared to the crook running away from his corpse. He had a bad scare of his face and did not have any friends. But Mr. Nath is a patient to their mother, who is a doctor by profession. Their mother has told them that he is a polite man. Nisad is also called Seven because his name means the seventh note of a musical scale. निशात तथा उसकी 10 साल की बहन माया दोनों में अपनी पड़ोसी मिस्टर नाथ को लेकर हमेशा उत्सुक रहा करता था। एक बार निशात का कंचा गलती से मिस्टर नाथ के घर के अंदर चला गया और उसी घर में अंदर झांकने का एक मौका मिल गया। निशात को लगा कि वो कोई अपराधी है जो पुलिस से बचाते फिर रहे हैं। उसके चेहरे पर एक घाव का निशान है तथा उसकी कोई मित्र नहीं है, पर उसकी माँ के लिए मिस्टर नाथ एक मरीज है और उनकी माँ को पता था कि वो एक भद्र व्यक्ति है। निशात का दूसरा नाम सेवन भी था क्योंकि उसका नाम संगीत तथा सातवीं नोट निशात पर था। Two children were busy discussing their mysterious neighbor. They argue about his financial wealth, how he manages his food and so on. Nisha thinks that he is poor and does not have much money, while Maya believes that he has got a lot of it. He has kept it hidden somewhere in his room. Then it was Mr. Nath's scare that bothered the children. They thought that he might have got during a shoot out of with the police on their mother's birthday. Nisad went along her the clinic. He happened to see Mr. Nath there. He was worried seeing Mr. Nath gone appearance. The evening Nishad went to his place and gave a bar of chocolate to Mr. Nath. Nishad befriended Ramesh, the boy who used to bring food for Mr. Nath's room nearby restaurant. Ramesh informed him that Mr. Nath had 2 meals a day and tea in the morning and evening. His meal was the same every day and always used to pay in cash and tips as well. He brings 2 lunches in Sunday and it is the same visitor he finds there. The visitor was a tall, short and spectacled man who talked a lot while Mr. Nath in quiet person. The children were thrilled and they were discussing the possibility of Mr. Nath being a crook. दोनों बच्चों अपने रहस्यमय पड़ोसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इसकी आर्थिक स्थिति उसकी कैसा है, खान पान का जरिया इत्यादि की चर्चा कर रहे थे। निषाद के अनुसार वो एक गरीब व्यक्ति थे, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जबकि माया को लगता था कि उसके पास ढेर सारे धन है और उसे इस धन का अपने कमरे में छिपा कर रखा है। इसके बाद मिस्टर नाथ के चेहरे के घाव दोनों बच्चों के परेशान कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनका जख्म पुलिस से मुठभेड़ में दौरानी लगा है। अपनी माँ के जन्मदिन पर निषाद उनके साथ बालकनी तक गया। वहाँ पर उसने मिस्टर नाथ को देखा। वो उनको दुबला पतला शरीर को देखकर चौंक गया। उस दिन शाम को निषाद उनके घर पर गया एवं उनको चॉकलेट दी। निषाद थोड़ी देर के लिए रमेश से मिला, जो पास की रेस्टोरेंट से मिस्टर नाथ के लिए भोजन लाया करता था। रमेश ने उनसे बताया कि मिस्टर नाथ दिन में 2 बार भोजन करते हैं तथा सुबह और शाम को चाय लेते हैं। उनका भोजन प्रतिदिन एक समान होता था और बख्शिश के साथ नगद भुगतान भी करना कैश देते थे।
रविवार को दिन वो भोजन को 2 थाली लाता था और हर बार उसे ही अतिथि नजर आता था। अतिथि एक लंबा रुष्ट पृष्ठ बंदा था और चश्मा पहनता था। वो बातूनी था, टॉकेटिव, जबकि मिस्टर नाथ शांत स्वभाव के थे। बच्चे समझ गए थे कि अब दोनों को लग रहा था कि वो व्यक्ति निश्चित रूप से दुष्ट है। Their school opened after the summer holiday the next day, but they could not attend it because heavy rain. Nishad was busy reading his comics and Maya informed what she had done. She had made a note everything they knew about Mr. Nath, calling them fact, and gave a number to each one of them. Nishad disagreed with Maya for calling Mr. Nath a criminal. He felt bad for him for having no friends, while Maya thought that the visitor who come to his place on Sunday may be his partner who know all his secret and may be the loot as well. Both the children had argument. Nishad was upset with Maya for calling Mr. Nath a crook. Nishad was interested only in finding out why Nath was so thin and loner. He wanted to be his friend, and Maya theory did not have any impact on Seven. गर्मी की छुट्टियों के बाद उनका स्कूल अगले दिन खुल गया था, पर भारी बारिश की वजह से स्कूल नहीं जा सके। जब निशाद कॉमिक पढ़ रहा व्यस्त था तो माया उसे कुछ बताना चाहा। उसने मिस्टर नाथ को जुड़ी प्रत्येक बात नोट कर रही थी तथा तथ्य का नाम दिया और प्रत्येक तथ्य को एक एक अंक प्रदान कर रहा था। निशाद असहमत था कि माया उसे अपराधी कह रहा था, जबकि मिस्टर नाथ के बारे में उनको कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। निषाद को मिस्टर नाथ की कोई मित्र न होने पर बहुत बुरा लग रहा था, पर माया के अनुसार प्रत्येक रविवार को उसका भोजन आने वाला व्यक्ति उसके अपराधी साथी है और उसकी राज एवं लूट के सामान छिपाने की सारी जगह वो जानती है। दोनों बच्चों के बीच में इस बात को लेकर एक तीखी बहस हो गया था। निषाद को इस बात को बुरा लग रहा था कि माया अपराधी मान रही है। निषाद को ये इतना जानना चाहता था कि मिस्टर नाथ की इतने दुबले पतले तथा अकेले क्यों है। वो उनका एक मित्र बनना चाहता था और माया का तथ्य पर निषाद को जरा भी यकीन नहीं था। क्रूक का मतलब होता है शैतान, अ पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट और क्रिमिनल। स्टेड अवे मतलब कीप और ले असाइड इन फ्यूचर, भविष्य के लिए रखना। शूट आउट गोलीबारी। गॉन्ट भूख से दुबला पतला हो जाना। पीक झांकना। स्टाउट मजबूत कंद। साइन राहत और सांस लेना। रिट्राइट से समथिंग इन आंसर टू रिमार्क टिप्पणी करना। हाउस ब्रेकर to act on unlawful breaking into and entering another house. Fire means extreme strength in an action, natural phenomena. ये उसका मीनिंग है, सब वर्ड मीनिंग। Okay, now the story is finished.